right? Okay, right. So, my question is, what is the difference between syllabus and curriculum? Usse pehle we discuss about the curriculum. Curriculum basically it contains the syllabus as well as co-curricular activities. Syllabus only एक merely part है. Okay, मतलब you have seen that अभी आज के schools के अंदर every teacher is busy in उसका जो सब्जेक्ट होता है ना, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, साइंस है, उसको सिर्फ फिनिश करवा रहा है, राइट? मतलब व्हाट आर यू थिंकिंग दैट कि ये जो सिलेबस ही है इट इज ऑल अबाउट, बट सिलेबस से बेटा क्या होगा? व्हाट विल हैपन फ्रॉम द सिलेबस when you will impart the syllabus in the class, when you will finish the syllabus, only you are developing the one aspect of the child, और वो aspect क्या है? Intellectual development. आप क्या कर रहे हो? You are pouring the content into the mind of the student, है ना? Are you agree or not? Yes, sir. Are you with me? Yes, right? sir. Yes, sir. तो बेटा वो नॉलेज, वो जो नॉलेज है वो तो स्टूडेंट को आज की डेट में इंटरनेट से भी मिल जाएगी, राइट? इवन आपसे भी बेटर नॉलेज इंटरनेट कैन गिव द स्टूडेंट. So then what is your role? Try to understand your role is more than the course of study, more than the syllabus. Okay, so being of a teacher you have to follow the curriculum. Okay, so first of all you should be clear about the curriculum. Curriculum क्या चीज है? Curriculum एक broad concept है. Close the books and others. Okay, open discussions करो मेरे साथ, interact करो. The more you will interact, the more you will learn. The less you will interact, less you will learn nothing. Okay, right? So you have to interact. Curriculum, because when you go for the jobs and others, okay, some questions are asked from you. So being of a teacher, you have to go according to the curriculum. Curriculum, it is a big word, it is a comprehensive term, right? So guys, everything happens in a 365 days. This is called curriculum. Okay, teacher is conducting a test, you are celebrating the day. Today is the Independence Day na, happy Independence Day to all of you, right guys? तो अभी क्या हो रहा है? तो ये भी डे को सेलिब्रेट हो रहा है ना? वी आर सेलिब्रेटिंग द डे and we are celebrating the each and every activities. Okay, you are motivating the student to take part into the sport activity, है ना? You are motivating the student to take to go on to the tour पे उनको लेके जा रहे हो. तो ये सारा का सारा क्या है? This is a curriculum, right? कंटेंट्स हो गया, डिबेट्स हो गया, असेसमेंट्स होगी, इवैल्यूएशंस हो गई हैं, टेस्ट हो गए, एग्जामिनेशंस हो गई हैं, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शंस हो गया है. दिस इज ऑल अबाउट द करिकुलम, एंड बीइंग ऑफ ए टीचर you have to go to the curriculum. So guys, now you have come to know teaching is not everybody's cup of tea, है ना? Why one person has given this definition, teaching is not everybody's cup of tea. Why? Because teaching does not mean to finish the syllabus. आपने ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सिलेबस है आपका वो एक सिर्फ कंटेंट नॉलेज है. तो व्हेन यू आर पुटिंग द कंटेंट नॉलेज इनटू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, you are developing only the one part. But modern aim of education, what the modern aim of education says that, the modern aim of education says that being of a teacher, you have to complete the overall personality of the child. And what is the overall personality? You have to develop the student socially, mentally, intellectually, spiritually, aesthetically. तो all the parts, जितने भी parts हैं, आपने उसको उसकी balanced personality बनानी है. This is the real aim of the education, and you can achieve only that once you have the knowledge of curriculum and you go according to the curriculum, right? Guys, देखो टीचर का पूरा एक 7 घंटे 8 घंटे जो बच्चा होता है ना, तो मतलब means in the schools, okay, तो whatever the personality he develops, तो वो पर्सनालिटी कहाँ से उसको आ रही है? वो टीचर के कारण ही आ रही है ना, है ना? आर यू एग्री और नॉट? Yes, sir. तो आप मुझे फिर ये बात बताओ, आपने सुना होगा कईयों से कि भाई मैंने तो बहुत पढ़ाया इस बच्चे को, लेकिन ये बच्चा नालायक है ना? सुना होगा ना, मेनी टाइम्स.
है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आप मुझे ये बताओ, ये जो लाइन है ये वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, Not, sir. अच्छा नालायक है? No. नालायक अच्छा, कौन हुआ no, फिर? sir. Teacher, sir. मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन करो आप, इफ यू आर टीचिंग टू द 30 स्टूडेंट्स ना, क्लास के अंदर Yes, sir. 30 स्टूडेंट्स हैं, आपका लेक्चर 15 को समझ आ गया, 15 को नहीं समझ आया, तो किसकी गलती है? टीचर की। Teacher की. 29 स्टूडेंट्स को समझ आ गया, एक को नहीं समझ आया। आप एक की भी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाए हैं, एक को भी। 29 को समझ आ गया, उधर 29 को समझ आ गया, इधर एक की भी नहीं कर पाए हैं। तो दिस इज ए अगेन lack of, Teacher's fault. yes, teacher's fault, lack of knowledge of the teacher. Okay, matlab you couldn't reach up to the level of the student, because now when the curriculum is developed, when the curriculum is constructed, आपको मालूम है ये ध्यान में रखा जाता है कि भाई करिकुलम जो है वो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, and this is the responsibility of the teacher, to develop the student personality fully and freely. This is the real meaning of the curriculum. Okay, and when you talk about the syllabus bacche, it is a merely a content knowledge. Many times I have said that ki when you are going to teach in the class, है ना, तो you should know the subject first. मैंने बोला ना आपको sometime, है ना, तो know the subject first. यहाँ पर मैं I'm not talking about the subject of English, Hindi, mathematics, Punjabi and music and others. Okay, I'm talking about the subject means student, right? Yes. Suppose, yes, you are suppose teaching to the class of 25 students, तो बेटा वो 25 स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे होने चाहिए, राइट? मतलब उन 25 बच्चों का, उनका एटीट्यूड कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, उनका लर्निंग पैटर्न कैसा है, ठीक है, उनका वो कैसे समझते हैं चीजों को, वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। बिकॉज मतलब जो हर बच्चा होता है उसमें डिफरेंस होता है, इवन ट्विंस भी। एक मदर ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म भी दिया ना, वो दोनों बच्चों का भी सोच का पैटर्न, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, उनकी आदतें एक दूसरे से अलग होंगी, राइट? यस। तो आपको तभी तो ना, दिस इज द रीजन आप अपने पहले सेमेस्टर में बेटा फिलोसफी, साइकोलॉजी, यू हैव ऑलरेडी डन दैट। साइकोलॉजी का आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था, लर्निंग की थियरीज पढ़ी थी आपने, इंटेलिजेंस पढ़ा था आपने, इंटेलिजेंस टॉपिक किया था ना आपने। Yes. तो इंटेलिजेंस में हमने क्या पढ़ा था कि भाई एवरी पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं हमारे बच्चों के नंबर कितने आए, 97% आए, 98% आए, 99% आए, और उन पेरेंट्स ने सारी उम्र 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं लिए होते, है ना। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि 99% आ जाए? तो वो सिर्फ एक ही चीज के पीछे कि बच्चे पढ़ो 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 ज्यादा, है ना, एक ही वो इंटेलेक्चुअल की। तो आज ये प्रूव हो चुका है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही सारा कुछ नहीं होता। आज की डेट में ओवरऑल डेवलपमेंट की जरूरत है, ओवरऑल पर्सनैलिटी की जरूरत है। हो सकता है बच्चा उस चीज में ना हो, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी किसी और चीज में हो, है ना, हो सकता है ना, राइट? अभी आप एग्जांपल आप ले लीजिए, अभी अभी 10 डेज बैक की, है ना, अपने इंडिया का 100 साल के बाद गोल्ड मेडल आया है, पता ना आपको? गोल्ड मेडल हरियाणा का है सर, लड़का नीरज चोपड़ा है, वो गोल्ड मेडल लेके आया है, किसमें? जेवलिन थ्रो के अंदर। 100 साल के बाद गोल्ड मेडल आया है, राइट? और वो ही बिलोंग्स टू द पानीपत फ्रॉम हरियाणा। तो हरियाणा के सीएम ने उसको ऑन द स्पॉट ही उसको ही हैज गिवन द रिवार्ड ऑफ 6 करोड़ का उसको रिवार्ड मिल गया, 6 करोड़ का रिवार्ड मिल गया, जॉब मिल गया और उसको घर मिल गया कहीं पे भी। तो आप ये देखिए ना, अब उसके पेरेंट्स उसको कहें नहीं उसने पढ़ने हैं, है ना, मेरी बात सुनो। तो अब हमने वी हैव टू फाइंड आउट द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे की क्रिएटिविटी कहां पर है? तो अकेला हमें उसको सिर्फ कंटेंट नॉलेज दे के इंटेलेक्चुअल ही नहीं उसको बनाना, बाकी उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी ना हो, सोशली डेवलपमेंट ना हो, एस्थेटिक डेवलपमेंट ना हो, है ना, वैल्यू बेस्ड उसका ना हो नॉलेज उसकी, तो उसका बच्चे क्या फायदा, राइट? तो टीचर को ये पहले समझना बड़ी जरूरी है। दिस इज द रीजन कि आपके सिलेबस के अंदर फिलोसफीज हैं, राइट? आपने कभी हैव यू चेक दैट
कि भाई आइडियलिज्म कुछ और कहता है, आइडियलिज्म टॉक्स अबाउट, है ना, गॉड, आत्मा, माइंड, है ना, इसकी Yes, बातें yes. करता है। और प्रैग्मेटिज्म है वो बिल्कुल ही उलट है ना। प्रैग्मेटिज्म डजंट टॉक अबाउट द बिल्कुल आइडियाज उल्टा। एंड अदर्स, प्रैग्मेटिज्म टॉक्स अबाउट द एक्शन, है ना, वो कहता है रियलिटी इज फाउंड इनटू द एक्शन। नेचुरलिज्म कहता है वो दोनों ही अलग है, नेचुरलिज्म कहता है ना उधर है ना उधर है, बिल्कुल एवरीथिंग इज इन द नेचर, उधर है देयर इज नो in the सुपर nature. नेचुरल पावर, देयर इज अगर गॉड है भी, वो भी नेचर में ही है। तो आपने हैव यू सीन दैट आप ये इतनी थ्योरीज, इतनी फिलोसफीज क्यों है फिलोसफीज? कोई बता सकता है क्यों है फिलोसफीज? क्योंकि सर हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। एब्सोल्युटली, हर इंसान की फिलोसफी अलग अलग होती है, सोच का अलग मतलब अलग ही होती फिलोसफी है। होता है, राइट? यस अगर आप अवेयर ही नहीं हो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी से, तो आप तो एक ही फिलोसफी को लेके बच्चों के साथ लड़ाई करने लग पड़ोगे, यस है ना? सर। मतलब आप ये देखें, गुरमीत मैडम, ये कितना वो लगता है कि एक टीचर है, बीएड है, एमएड है ना, पोस्ट ग्रेजुएट है, और उसने पूरा साल 6th क्लास के बच्चे के साथ लड़ाई लेके बैठा हुआ है, यस सर, बहुत ही है ना? बेकार मतलब चीज आप ये है देखो, ये। हाँ, मतलब कितनी हमने अपनी सोच को वो कर दिया है अपना, है ना? आप ये छोटा देखो, किया हुआ है, कितना बिल्कुल। छोटा वो किया जी हुआ है। सर। मतलब हमें अपने दायरे बढ़ाने हैं गाइस, दायरों को बढ़ाना है। जब आप टीचिंग लाइन में आ गए हो ना, वंस यू हैव कम इनटू द टीचिंग लाइन, तो आपका जो टेरिटरी है ना, वो आपके घर तक ही नहीं होनी चाहिए, वो आपकी टेरिटरी बढ़नी चाहिए, राइट? तो वो आपकी, मतलब वो सारे बच्चे ही आपके बच्चे हैं दरअसल, राइट? एक्चुअली यस ओके, सर। एक्चुअली मैडम, एक्चुअली बात यही है मैडम। देखो, शेक्सपियर ने लिखा है, देयर इज हाँ नथिंग जी बैड इन द वर्ल्ड, इट इज आवर थिंकिंग दैट मेक्स इट सो। मतलब वी जी, हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द स्टूडेंट। भाई क्या कारण है बच्चा पढ़ नहीं रहा, है ना? पढ़ नहीं रहा, बिल्कुल। क्या कारण है बच्चे अच्छे नंबर लेके नहीं आ रहा? क्या कारण है बच्चे शरारतें कर रहे हैं? शरारतें बच्चे तब करता है जब आप पढ़ाते नहीं हो क्लास के अंदर। अब कभी भी आप ये बिल्कुल। करके देख लो एक्सपेरिमेंट, Yes, ओके? sir. अभी मैं भी 5 मिनट के लिए चुप हो जाऊं, अभी देखो सारे शोर आने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, वो किचन से भी शोर आएगा, किसी का वहां से भी आएगा, किसी के गेस्ट भी आ जाएंगे, किसी के वो भी आ जाएंगे, राइट? अब मैंने पढ़ाना Yes, स्टार्ट yes, किया, सारे शांत हो गए, हो yes, गए कि sir. नहीं शांत, बिल्कुल सर। Yes. राइट? जी ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि भाई इनको हाउ टू कीप द स्टूडेंट बिजी। सर, एक्चुअली जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने वाला भी ऐसी चीज तरह पढ़ाए आपकी तरह, इंटरेस्ट ले दूसरा बंदा, तो अपने आप शोर कम हो जाएगा। जब आप इंटरेस्टिंग पढ़ाओगे नहीं, तब भी शोर आएगा सर। ये किसके लिए, ये मैडम किसके लिए एप्लीकेबल है? अभी आप सर टीचर तो आप आपसे बनने जा रहे सीख हैं, मैं रहे तो हैं बन हम गया, लोग। मैं तो बन हाँ गया ना सर, आपसे टीचर। सीख रहे हैं ना हम। जैसे आप इंटरेस्ट लेके पढ़ाते हैं, हमें इंटरेस्ट आता है, तो हमें भी ऐसा ही बनना है सर। ऐसा ही बनना है आपने, ठीक है कि नहीं, राइट? जी तो ऐसा मैडम, जी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? इसमें इसमें हमें अब जी क्या करना है, उस चीज को हमें सीखना है, उस चीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है, राइट? कि जब हमें पढ़ाना है तो हमें अपनी घर की प्रॉब्लम को साइड पे रख के जाना है, राइट? रखना है। स्कूल का टाइम है 8 to 2 o'clock, तो 8 or 2 o'clock वी शुड बी इन स्कूल, है ना? उसके बाद हमें अपने वो यस। घर का रखना है, राइट? और मैं दावे से कहता हूँ बच्चे कि भाई हम जो ये वर्ड्स बोलते हैं ना कि ये बच्चा नालायक है, ये चीजें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, नहीं बिल्कुल ओके? सर। राइट? अब आप सारे बैठे हो, आप मुझे कोई बताओ कि आप में से कोई बताओ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, बताओ, अभी मैं सारा समझाता हूँ आपको। कोई कह सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा है? नहीं सर, नहीं। Right? All you are trained and you will intelligent, you will get a good marks, सारे के सारे लोग हैं। तो असल में हमने उस टीचिंग को समझना है मैडम, और टीचिंग भी ना, याद रखना, टीचिंग एक स्किल है, ओके? और जो Yes, स्किल sir. होता है, स्किल फेड्स विद टाइम, टाइम के साथ फेड हो जाता है। जी इसीलिए हमें we don't have to become a teacher, we have to become a learner, ओके? क्योंकि जब हम लर्नर बन गए तो हम ऑटोमेटिकली टीचर बन गए, है ना? लर्नर का मतलब है कि भाई, अब सपोज करो, इफ आई डोंट हैव इन द माइंड, है ना, ये जो बातें आपको बता रहा हूँ, अगर ये मेरे माइंड में ही नहीं है, तो मैं हाउ कैन आई कन्वे टू यू, राइट? Yes, तो sir. मुझे आई हैव टू बिकम ए लर्नर, है ना? मैं लर्नर हूँ, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द लेक्चर। अभी आधा घंटा के, अभी आप 2 घंटे भी बैठे रहो, राइट? ये कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, जरा देख लो काइंडली बेटा। तो Yes, आप चाहे sir. सारा 8 घंटे भी बैठे रहो, 8 घंटे भी बैठे रहो, 8 घंटे भी, 8 घंटे भी डिस्टर्बेंस आ रही है बेटा। हर्ष मैडम, आपकी सर डिस्टर्बेंस, म्यूट कर दो आप। हर्ष मैडम, हाँ, ये डिस्टर्बेंस थी किसी की।
तो आप लोग म्यूट कर सकते हैं उसमें, ओके। तो देख लो अगर किसी की है तो बच्चे यू शुड हैव सो मच कंटेंट कि 4 घंटे, सपोज करो आपके पास कोई लेक्चर ही नहीं है ना, तो आपके पास यू हैव द कंटेंट कि आप यू कैन कीप योर स्टूडेंट्स बिजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम अ लर्नर, ओके। स्वामी टैगोर, यस, रविंद्रनाथ टैगोर की एक डेफिनेशन है ना लर्निंग के ऊपर ही, क्या थी डेफिनेशंस उनकी, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में की थी। A lamp can never light to another lamp unless or until it continues to burn its own flame। मतलब एक जलता हुआ दिया ही दूसरे दिए को रोशनी दे सकता है ना। तो जलते हुए दिए का क्या मतलब है कि आपके अंदर लर्निंग होनी चाहिए, ओके। तो गाइस आपने हर रोज पढ़ना है, ओके। पहले तो अपने सिलेबस को ही पढ़ो, सब्जेक्ट्स को ही पढ़ो, इसके अलावा आप अपना कोई ना कोई आइडियल बनाओ बच्चे, उस आइडियल को आप पढ़ो, राइट। कुछ भी सीखने से आपको मिल रहा है, किसी भी पर्सनालिटी से आपको सीखने को मिल रहा है, उस पर्सनालिटी से आपने सीखना है, राइट। तो जैसे जैसे आप, क्योंकि ना टीचिंग यही नहीं है कि सिर्फ अपना सिलेबस ही खत्म करवा देना, ओके। टीचिंग का मतलब ये है कि आप उनको बातों ही बातों में एग्जाम्पलें दे के ही, इंटरेस्ट बना के ही आप उनको, देखो एक अच्छा टीचर होता है ना, वो सबसे बोर लेक्चर को भी बेटर बना देता है, और जो एक बुरा टीचर होता है वो सबसे अच्छे लेक्चर को भी बोर बना देता है, बोरिंग बना देता है ना, राइट। yes, अब आप ये देखो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। जब हम लोग सभी छोटे थे, है ना, 5th क्लास में थे, 6th में थे, 7th में थे, तो हम भाग के, छुट्टी होती थी, घर में आते थे, है ना, और शाम को हम कोई जो भी सब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हम वर्क करते थे, है ना। सभी का कोई ना कोई सब्जेक्ट फेवरेट होगा, है ना। किसी का एसएसटी फेवरेट होता है, किसी का इंग्लिश फेवरेट है, किसी का, तो वो बच्चा उस सब्जेक्ट को सबसे पहले करता था, है ना, करता था ना। याद करो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था, ओके बोलो। कल्पना मैडम आप बोलो, जसप्रीत आप, कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था, गुरमीत मैडम आप? सर हिंदी, मैथ था, कल्पना मैडम का हिंदी था, गीत का नहीं सर मेरा था हिंदी, इंग्लिश था, सारा था ना। अब मैं आपको एक चीज बात बताऊं, ध्यान से सुनो, आपका सब्जेक्ट फेवरेट नहीं था, पता है आपको? टीचर फेवरेट था। यस, आपका वो टीचर फेवरेट था, राइट। वो टीचर अगर दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाता है ना, आपको वो सब्जेक्ट भी बेटर ही लगने थे उतने जितना वो सब्जेक्ट बेटर लग रहा है। यस सर। सर मेरी टीचर बहुत ज्यादा पढ़ाती थी वो सब्जेक्ट, इसलिए अच्छा लगता था। हाँ, इसलिए वो अच्छा लगता था, ठीक है ना, वो टीचर अच्छी थी ना, मेरा मतलब बात वहीं पे आ गई ना। तो टीचर, तो हमें अच्छा बनना है, हमें एक अच्छा लर्नर बनना है, वी हैव टू बिकम ए वेरी गुड लर्नर। तो जब हम अच्छे लर्नर बन गए तो हमें ऑटोमेटिकली मैडम अच्छा चीजें आ जानी है, ओके। तो टीचिंग को भी थोड़ा वो नहीं करना है, राइट। टीचिंग को थोड़ा वाइडर कंसेप्ट में आपको देखना है, राइट। तो teaching does not mean pouring into the mind of the student, है ना। many times I have said that teaching means drawing out of the best, है ना, बच्चों में से निकालना, उसको टीचिंग बोलते हैं। arousing the learning power of the student, उसको टीचिंग बोलते हैं। stimulating the learning power of the student, उसको टीचिंग बोलते हैं। स्टिमुलेट कर देना बच्चों को, बच्चे पढ़े ही पढ़े, दिस इज कॉल्ड टीचिंग, राइट गाइस। तो टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कंटेंट नॉलेज, टीचिंग का मतलब है डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स आल्सो, राइट। यू शुड नो हाउ टू डिलीवर द कंटेंट, कंटेंट को डिलीवर कैसे करना है, उसके माइंड तक कैसे पहुंचाना है, दिस इज कॉल्ड द टीचिंग। और उसके लिए बच्चे आपके पास मटेरियल का होना बड़ा ही जरूरी है, राइट। तो हम बात कर रहे थे, करिकुलम की बात कर रहे थे, तो ये सारा का सारा जो भी मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, ये सारा का सारा दैट कम्स अंडर द करिकुलम। और जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपका एक सिर्फ पार्ट ही है करिकुलम, राइट। इवन कि आपका जो 3rd वाली बुक है ना, नॉलेज एंड करिकुलम, है ना, उसमें से भी ये वाला सारा टॉपिक क्लियर हो रहा है, इनफैक्ट ये वाला, ओके। अब जब बात आती है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, है ना, हाउ यू कैन डेवलप द करिकुलम। तो सबसे पहले तो बात आती है, इस करिकुलम को बनाता कौन है, हु मेक्स द करिकुलम। तो गाइस ओनली यू हैव टू रिमेंबर, curriculum is not only made by the government officials. Curriculum is made by the government, central government, state government, community, teachers, right, student also। आपको मालूम है जब सिलेबस और करिकुलम तैयार होते हैं तो सारों की राय ली जाती है। अब जो जो हमारी न्यू पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है,
तो उसमें ये सारे के सारे इंक्लूड थे, राइट। ये स्टेक होल्डर्स थे, इनको बोला जाता है स्टेक होल्डर्स ऑफ द करिकुलम। तो जब ये करिकुलम बनता है तो 4, 5, 6 पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1 जैसे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, राइट, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ए कोरिलेशन, राइट, प्रिंसिपल ऑफ ए इंडिविजुअल डिफरेंस, राइट, प्रिंसिपल ऑफ ए वैरायटी। तो ये सारी 5, 7, 10 चीजों को ना दिमाग में रखा जाता है। यानी एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, उस करिकुलम की यूटिलिटी होगी कि नहीं होगी, उस करिकुलम से हर बच्चों के अंदर कॉपरेशन, कंपैशन, लव, फ्रेटर्निटी, आपस में ये भावना पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। ये सारी की सारी, और कोरिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, राइट, कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि एवरी सब्जेक्ट शुड कोरिलेट विद ईच अदर। देयर शुड बी कोरिलेशन बिटवीन द म्यूजिक एंड द साइंस, there should be a correlation between the history and the chemistry। सारों का कोरिलेशंस होना चाहिए। तो ऐसा एक करिकुलम निकल के आना चाहिए। ओके, ये जो हमने किए हुए हैं ना कि वो बीएससी वाला है, वो बीए वाला है, और एक वो बना हुआ है ना, अगर वो साइंस वाला तो बड़ा ही इंटेलिजेंट होगा, है ना, कुछ बनी हुई है ना ये चीजें, है ना, भाई ये साइंस स्टूडेंट है, बड़ा इंटेलिजेंट होगा, राइट। तो ये मुझे ये बताओ, साइंस के कितने स्टूडेंट्स हैं जो आईएएस ऑफिसर होते हैं? वेरी लेस, है ना। तो आपको मालूम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को खत्म कर दिया गया है। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर व्हेन यू नो when you will your student या your children will clear the 10+2, उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन करेंगे they would be awarded ग्रेजुएशन डिग्री। ओके, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, ये सब कुछ खत्म हो गया है। डू यू नो दैट, राइट? तो इफ यू डू द तो यू ग्रेजुएट, तो यू वुड बी ग्रेजुएटेड, मतलब 30-40 सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से आपको 4 या 5 कोई भी सब्जेक्ट लेने होंगे। ओके, तो आप 5 सब्जेक्ट, सपोज करो आपने एक ले लिया मैथमेटिक्स, है, एक ले लिया हिंदी, एक ले लिया साइंस, एक ले लिया कॉमर्स, एक ले लिया म्यूजिक। आज की डेट में ऐसे 5 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो? बताओ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में। नो सर। हाँ, तो गाइस एक्चुअली हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, इसको समझ ही, मतलब आप देखो ना, टाइम लग जाता होता है चीजों को। ओके, जो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो दे हैव रीच्ड ऑन दैट लेवल बिकॉज ऑफ द टीचर। उन्होंने उन सरकारों ने उस चीजों के ऊपर काम किया, राइट। हम तो अभी तक पूरी तरह से लिटरेसी को ही नहीं पूरा कर पाए हैं, राइट। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, रूल है, एजुकेशन पॉलिसी 10 साल के बाद चेंज होती है। आजकल आप देख ही रहे हो, 1 साल में इतना चेंज आ जाता है ना। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है 34 साल के बाद आ रही है, आफ्टर 34 ईयर्स। हाँ, तो इसलिए ना, तो टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर का स्कोप भी बहुत है गाइस। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्कोप या सैलरी ऑफ टीचर्स, है ना, उसकी जॉब्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि आफ्टर फिनिशिंग यूर बीएड आपका स्कोप बहुत ही बेटर है, और ये ऐसा स्कोप है जो सारी उम्र चलता रहेगा। अभी कोरोना में आपने देखा होगा, काफी सारे उनके जो है ना वर्क थे वो उनके क्लोज हो गए हैं, लेकिन टीचिंग फिर भी चलता रहा, चाहे वो ऑनलाइन ही चलता ऑनलाइन, है ना, आपने देखा होगा, राइट। मतलब कोई ऐसा टीचर होगा जिसको फ्री किया होगा स्कूल ने, पर जो अच्छे स्कूल्स हैं उन्होंने अपने टीचर्स को भी नहीं छोड़ा, है ना। थोड़ी सैलरी थोड़ा ऊपर ज्यादा कर दी होगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसको उन्होंने घर पे बिठा दिया, है ना। बहुत कम होंगे, हो सकता है ना, एक्सेप्शनल सभी जगह पे होती हैं। तो स्कोप तो इसका बहुत ही बढ़िया है, सैलरी वाइज भी इसका बहुत बढ़िया है, ठीक है गाइज। और जहां तक आप टाइम्स देखते हैं, तो टाइम्स भी बड़े फ्लेक्सिबल टाइम्स हैं, है ना। 8 o'clock यू हैव टू गो, 2 o'clock यू हैव टू कम बैक। अब बैंकों की हालत आप देख लीजिए, बैंक्स के अंदर लड़कियां लगी हुई हैं, है ना, जॉब्स कर रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक जॉब्स करती हैं। और गुरमीत मैम, शाम को अगर कोई कैशियर लड़की बैठी है वहां पे, अगर 500 रुपया कम हो जाए, उसको अपनी जेब से डालना पड़ता है। बिल्कुल सर, पता है ना आपको, आप ये देख लो, मतलब उस प्रेशर के साथ वो वर्क कर रहे हैं, राइट। तो हमें, यू आर लकी, ओके, आपने वाकई कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, सुनो मेरी बात, पिछले जन्म में, इस जन्म में, तो यू ऑल आर बिकमिंग अ टीचर। तो टीचर जो है, टीचर इज ए रियल इमेज ऑफ ब्रह्मा। टीचर के पास बहुत कुछ होता है, तो बहुत ही इसका बच्चे स्कोप है इसका, राइट। द ओनली थिंग इज दैट कि आपने हर रोज 1.25 घंटा 1.5 घंटा अपनी स्टडी को दो। आप 1.25 घंटा 1.5 घंटा 24 घंटे में से नहीं दे रहे हैं ना, तो यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ द एजुकेशन, यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ द टीचर। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था
कि जो ये एजुकेशन है, इट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द हैंड्स ऑफ द टीचर, है ना। मतलब इससे ना यू कैन चेंज द अपनी लाइफ भी, वर्ल्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें इतना वो है बेटर। लेकिन बच्चे वर्क करना पड़ता है, ओके, उसमें आप अपना बनाओ, क्योंकि ये जितने भी है ना, व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक्स हो गए, ये सब चीजें जो हो गई है ना, ये सारा का सारा ना ये एक तरह से टाइम वेस्टेज है। अगर तो आप उसको नॉलेज गेन करने के लिए देख रहे हो तो दिस इज ओके। अगर आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो आपको पता भी नहीं लगता, बिलीव मी, कब यू हैव अडिक्टेड। आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जा रही हैं, आप कब एडिक्ट हो गए उन चीजों की, आपको पता ही नहीं लगता। और वो कामयाब हो जाता है जो फेसबुक, जो इधर जो भी है व्हाट्स, जो वो वाला पर्सन है, राइट। क्योंकि उन्होंने आज ये देख लिया है, जो भी मार्केट कॉर्पोरेट्स वाले पर्सन हैं, कि भाई इफ द पर्सन्स आर नॉट परचेजिंग एनीथिंग, तो उनके अटेंशन है उसको खींच लो, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बिठा दो, राइट। वो आप ऑटोमेटिकली वो एडिक्ट हो जाते हैं, राइट। तो उतना ही टाइम आप अपने ना नॉलेज के लिए लगाओ, तो हर रोज आप कितनी नॉलेज आप ले सकोगे, हर रोज कितना कुछ आप वर्क कर सकोगे, राइट। अगर टाइम ही देना है तो क्यों ना पर यूजफुल चीज को टाइम दिया जाए, है ना, जिससे हमें लर्निंग हो, जिससे हमें नॉलेज बने, राइट। तो सिर्फ कंटेंट मैटर ही बीएड का काफी नहीं है, उसके अलावा आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट्स भी होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया गाइस। और साइड बाय साइड थोड़ा बहुत आप अपना कम्युनिकेशंस के ऊपर भी आपने वर्क करना है। ठीक हो गया। कम्युनिकेशंस का डोंट थिंक दैट कम्युनिकेशन मींस यू हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश, आप यू शुड बी एक्सीलेंट इन इंग्लिश, ऐसा नहीं होता, राइट। याद रखना, जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो एक लैंग्वेज होती है, राइट। अगर कम्युनिकेशंस की मैं बात कर रहा हूं, कम्युनिकेशंस का मतलब होता है बातचीत करने की कला, ओके। कम्युनिकेशन डजंट मीन कि आपको यू हैव टू बिकम अंग्रेज, ठीक है, आपकी इंग्लिश इतनी होनी चाहिए टॉप की। आपकी जो भी लैंग्वेज है, आपको यू शुड नो हाउ टू कन्वे, मतलब जब जरूरत है तब बात करें, है ना, कब दिमाग में बिठाने की चीज आनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन, ओके। तो आपको इन चीजों के ऊपर आप वर्क करेंगे तो बच्चे देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इन द फील्ड ऑफ टीचिंग आल्सो, ओके। ये सारा का सारा ना ये चीजें दैट कम्स अंडर द करिकुलम डेवलपमेंट। अभी आप कुछ पूछना चाहते हो, आप मेरे से पूछें, राइट। ये तो मैं तो आपको 4 घंटे तक यहाँ पे बिजी रख सकता हूँ, राइट गाइस, ओके। इफ यू हैव द क्वेश्चंस तो ये देखो, ये मैटर, ये इतनी ये चीजें होनी चाहिए, ओके। तो आपकी कोई भी चीजें हैं तो डिस्कस करो, डोंट थिंक दैट कि ललित सर को फोन करके अकेले में पूछो। अकेले में क्या पूछना, अभी पूछो, सुनो मेरी बात, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो, है ना, तो अपा सारे के सारे टीचर्स हैं, सुनो मेरी बात, हेल्प होगा, ये नेचर होना चाहिए टीचर के अंदर, ओके। कोऑपरेट करो, टीचर का मतलब होना चाहिए डिसेमिनेशन ऑफ द नॉलेज, उसको जितना हो सकता है उसको डिसेमिनेट करो, है ना, उसको फैलाव करो उस नॉलेज को, ओके। छोटी सी नॉलेज लेके उसी को दिमाग में रख के बैठ दो, यार मुझे उतनी नॉलेज पता है ना, उससे हो क्या रहा है, आपका माइंड कर रहा है आगे पढ़ना भी नहीं है, बस वही नॉलेज को यूज करना है और बतानी भी नहीं किसी को, है ना। तो एक्चुअली वो नॉलेज को कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं, भूल जाते हैं ना। जैसे अभी आपको दोपहर को तो पता है क्या खाना खाया था, पता है ना, 4 दिन पहले दोपहर को क्या खाया था किसी को याद नहीं है, नहीं याद होगा। हाँ, तो इस चीज को समझो, ये क्या चीज है, कॉन्शियस माइंड है हमारा। तो कॉन्शियस माइंड ये चीजों को बड़ी जल्दी भूल जाता है, ठीक हो गया। तो हमें उस कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है एवरी डे, जो हम वट एवर वी आर लर्निंग, तो बेसिकली हम अपने आप को बेटर टीचर ही बना रहे हैं। आपको मालूम है, आज मुझे बीएड मैंने की थी 2001 में, आज से 20 साल पहले, राइट। और आज तक मैंने टीचिंग नहीं छोड़ी, आप देखो, राइट। टीचिंग कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपने अगर टीचिंग ही छोड़ दी, आप याद करो, जब आप लोगों ने ग्रेजुएशन की थी तो आप लोग एवरीथिंग वाज ऑन योर फिंगर टिप, है ना। 3, 4, 5 साल, है ना, शादी होगी, बेबी हो गया, कुछ थोड़ा उलझन में फंस गए, तो अब 5 साल के बाद पता लग रहा है यार पता नहीं क्या ना, हम कहाँ पे हैं, है ना, ये चीजें। तो कभी भी ना इसको आप छोड़ना, आप दोबारा से यू हैव स्टार्टेड दिस वर्क, यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर, तो आपने इस चीज से कभी भी ना अपने आप को अलग करना, क्योंकि लर्निंग जो है ना, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस and it should remain the continuous process, and you have to make this learning as a lifelong learning, okay। आपका कोई क्वेश्चंस है तो पूछिए आप, सिस्टर सोनिया,
गीत, नितिका मैडम, स्वाति, कल्पना मैडम, गुरमीत मैडम, हर्ष मैडम, श्रेया जी। सर ये करिकुलम के अंदर है कि जेंडर डिफरेंस इन करिकुलम हाँ एक हाँ, टॉपिक है, वो नहीं मिला था। वो नहीं मिला था, कोई नहीं, मैं नोट्स भेज दूंगा उसके, ठीक है। आज जनरल कोई डिस्कशंस करो, इंटरेक्शंस, ठीक है, सिलेबस को छोड़ के। सर मुझे भी नोट्स चाहिए थे, मतलब मिले ही नहीं मुझे अभी तक एक भी नोट। जो नहीं मिले मैडम वो आप दे देना, कोई नहीं, वो मिल जाएंगे, डजंट मैटर। हाँ सर, एक भी एक्चुअली मुझे अभी तक एक भी रिसीव नहीं हुआ है। मेरे मैडम इंग्लिश मीडियम में, आपका ना हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम के डाल दूं सारे? नहीं, हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लास्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर था तो उसमें आपकी बुक जी थी पूरी इंग्लिश में ही थी, तो सर अच्छा, इंग्लिश के लिए थे आपने तो? हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश के मैडम आपको डाल देता हूँ, ठीक है, क्लास, ठीक है जी, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक पक्का यू मैडम, सर। सारे डाल देता हूँ, ठीक हो गया। यस, हाँ जी, एनीथिंग रिलेटेड विद कुछ थोड़ा सा आज थोड़ा सा उससे बाहर आके बात करो कुछ, ठीक है, ओके। पेपर तो आपके हो जाएंगे मैडम, ठीक है, मतलब बीएड आप हो ही गए हो, आप डोंट थिंक दैट कि आपकी बीएड नहीं है। मुझे 15 साल हो गए हैं, ठीक है, इस प्रोफेशंस के अंदर, तो सभी पास हो जाते हैं बीएड में, बड़े अच्छे मार्क्स से हो जाते हैं, ठीक है। थिंग इज दैट कि उसी 1-1.5-2 सालों के अंदर आपको ना अपने आप को बेटर बनाना है, क्योंकि आपने अपने आप को जो बना लिया फिर वही हैबिट बन जानी है, ओके। हर रोज कोशिश किया करो अपने आप को बेटर बनाने की, ठीक हो गया, हाँ जी। सो एनीथिंग सो आप अदरवाइज सारे आप टीचर बन चुके हो हैं, सारा कुछ आपको आता है, हाँ जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर द फॉर दिस क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क विद मी, ओके। 5 मिनट्स में और हूँ आपके साथ। सर जो 4th सेम में है वो जो हमने लगानी होती है ट्रेनिंग, वो कितनी देर की होती है? वो 3rd सेम में है गीत, वो 4 महीने की होती है, वो हम अच्छा, डिस्कस 3rd सेम में कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके। हाँ जी, वो लास्ट टाइम कोरोना के कारण ना वो जो उसमें था ना 3rd और 4th, वो आपस में स्वैप कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, और सर फिर वही स्कूल बताते हैं कि हमें अपने हाँ, आप वही स्कूल बताते हैं। आप ना इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं ना बीएड के, छोटे मोटे टॉपिक्स ना, थोड़ा सा खुद भी नोट्स बनाओ अपने सेल्फ, ठीक है, उससे आपको ना थोड़ा और बेटर नॉलेज मिलेगी, ओके। ओके सर। इसमें करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, माइक्रो टीचिंग मैक्रो टीचिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है, राइट। फिलोसफी, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म के अंदर क्या डिफरेंस है, इंटेलिजेंस इसके अंदर क्या है, थ्योरीज के अंदर क्या डिफरेंस है, राइट, जो इवन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है अपना, ओके। तो जब आप इसको ना व्हेन यू मेक द नोट्स बाय योर राइटिंग, तो उससे ना यू विल कम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। देखो, आप कितना टाइम देते हो अपनी स्टडी को, सारे बताओ जल्दी से। हाफ एन आवर। हाफ एन आवर देते हैं, कौन? सिस्टर सोनिया? यस सर। सिस्टर सोनिया गिव्स द हाफ एन आवर, चलो वेरी गुड, यस। और बाकी हाफ एन आवर। हाफ एन आवर जसप्रीत देती है एवरी डे, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी डे। हाफ एन आवर ये नहीं एक हफ्ते के बाद, मोस्टली सर। मोस्टली, ओके। Yes. वो मोस्टली देते हैं सिस्टर सोनिया, मतलब एवरी डे काइंड ऑफ, है ना। और जसप्रीत आप? सर एवरी डे। एवरी डे हाफ एन आवर, यस। और वीक में 2 और 3, सर वीक में 1 और 2, वीक में 1 और 2 डेज, ओके। हाँ जी, श्रेया आप? सर 2 आवर्स। 2 आवर्स एवरी डे? सर हो जाता है। नहीं, 2 आवर्स एवरी डे देती हो स्टडी को, बीएड को? हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, आप गुरमीत मैम? सर जब से नोटिस आया था कि एग्जाम होने ही नहीं है, तब से कर तो दिया। सर उस दिन से ना मैं टाइम उससे नहीं पहले दिया। उससे पहले आपने बोला था कि बुक्स लेके रख दो साइड में। सर उससे पहले 2 से 2.5 घंटे देती थी मैं। मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं सर, आपको सेंड कर सकती हूँ मैं। तो आज से फिर देना स्टार्ट कर दो मैडम, ठीक है। अगर तब मेरी बात मान ठीक रहे है थे तो सर, आज भी ठीक मान है। लो, ठीक हो गया, राइट, ठीक है सर, ठीक है। ओके। ठीक। हाँ जी, आप बताओ स्वाति, कल्पना मैडम, गीत? जिससे आधा 1 घंटा जब पता चलता है कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो सर आधा घंटा, और जब लगता है कि ऑफलाइन, जैसे आपने कहा था ऑफलाइन भी हो सकते हैं, तो सर ज्यादा ज्यादा लगता है 2 घंटे। ओके। हाँ। गीत कितना टाइम देते हैं? वेरी गुड। नहीं, आप अच्छे, मुझे आई एम हैप्पी कि आप टाइम दे रहे हो, राइट। मुझे ना ऑलवेज मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ जो बंदा ना नॉलेज वाला है, टाइम दे रहा है, वो मुझे अच्छा लगता है। हाँ जी, और गीत आप कितना टाइम दे रहे हो? सर हफ्ते में 3 या 4 दिन, 1 हफ्ते में घंटा। 3 या 4 दिन, वेरी गुड। 1 बस घंटा। आपने देते रहना है इसको, ठीक है ना। चाहे आपको ना, मतलब आप ये देख लो
आप मालूम है कौन हो आप लोग सारे? स्टूडेंट। नहीं स्टूडेंट नहीं हो अभी तो Teacher. आप तो टीचर को कहा जाता है टीचर इज द रियल इमेज ऑफ ब्रह्मा। आप लोग ब्रह्मा हो, गॉड हो। डू यू नो गॉड हो आप? आपको पता है इसको? कौन कौन इससे एग्री है? देखो आप एक बच्चे का डेवलपमेंट कर रहे हो, है ना? उस बच्चे के अंदर आप उस एक सोल है ना, वो एक है ना, एक रॉ मटेरियल है ना बच्चा, यस है ना बेटा? तो आप उसको देखो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आप इस चीज से एग्री होंगे सभी। आप लोगों को मालूम है, आप लोग जितने भी हो, आप लोग सभी किसी ना किसी की कॉपी हो, है ना? कोई अपने मदर की कॉपी है, कोई फादर की कॉपी है, कोई फ्रेंड की कॉपी है, कोई बड़े भाई बहन की कॉपी है, कोई टीचर की कॉपी है, कोई किसी ना किसी की कॉपी है ना? एग्री के नहीं? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन का आपकी जिंदगी के ऊपर काफी असर पड़ा है, राइट? तो Yes, ऐसे sir. ही जब टीचर होता है, उन सभी को टीचर बोला जाता है, ठीक है? माँ भी तो टीचर हो सकती है ना। आज से अगर 150 साल पहले कोई स्कूल ही नहीं था तो उसका क्या मतलब होता था? कोई टीचर ही नहीं होता था, ठीक है? पेरेंट्स ही पढ़ाते थे बच्चों को। तो यानी कि उस पर्सन का काफी असर रहा है आपके ऊपर। ऐसे ही बेटा, जब स्कूलों के अंदर 7-7 घंटे 8-8 घंटे बच्चा रहता है तो उसके ऊपर टीचर का असर होता है। ओके, आप अपने आप को कम मत समझो, ठीक है? आपका बताया हुआ एक एक वर्ड का टीचर के ऊपर असर होता है। आपको नहीं पता लगता कौन सा बच्चा आपको आइडियल बना लेता है। ठीक हो गया? तो आपको बच्चे बहुत पंक्चुअल रहना है, आपको अच्छा बोलना है, आपको ब्लेसिंग्स में रहना है, मिसिंग्स नहीं काउंट करनी, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, राइट? आपको प्रॉब्लम शूटर बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना। ठीक हो गया? Yes, sir. क्योंकि आपको ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा, ठीक है? आपके अकॉर्डिंग उसने अपना सारी चीजों को चेंज करना है। ठीक हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सो जो जितना टाइम दे रहे हो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है? जो नहीं दे रहे हैं थोड़ा उस चीजों को बढ़ाएं, क्योंकि बीएड इसलिए की जाती है, ओके? क्योंकि ये एक कोर्स है, कोर्स ऑफ स्टडी है। ठीक हो गया? सो गाइस, थैंक यू सो मच, ओके, फॉर द टुडेज सेशन, राइट? Thank you, sir. Thank you ओके so जी, much, sir. बाकी sir. जो भी नोटिस आता है मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, ओके? तो अभी आप अपना थोड़ा स्टडी। रिजल्ट विल बी आउट हाँ, रिजल्ट आ जाएगा मैडम, इस 5-7 दिन के अंदर आ जाएगा, कह रहे हैं, ठीक है? 20th से पहले आ जाएगा। और साइड बाय साइड थोड़ा अपनी स्टडी भी करते रहो, अदरवाइज आपके 99% तो आप प्रमोट ही होंगे, ओके? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने नोटिस दे दिया, वापस तो लेने से रही, ठीक है ना? ओके, तो ऐसी कोई न्यूज भी नहीं अभी कोई आई है, तो अभी जस्ट तो हल्का फुल्का वो भी करते रहो। ठीक हो गया जी? सर वैसे 23rd से होंगे ऑनलाइन एग्जाम। 23rd 24th से कह रहे हैं, 25th से इनफैक्ट। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाली क्लास Thank you, नेक्स्ट संडे को रखिए, एक आधा दिन पहले क्लास होगी, ठीक है? ठीक है सर। 22 की रखी है ना, ठीक है? Yes. यस या सैटरडे हो जाएगी या फ्राइडे हो जाएगी, ओके? ओके सर। Okay. One day before I'll Thank you, sir. all of you. Okay जी, Okay, thank you so much to all of you. Thank you guys. Thank you sir. Thank you जी. Should I leave the meeting बच्चे? Yes, हाँ yes, जी yes. Yes, sir. Okay जी, right बच्चे, bye. Yes sir.